Hello friends, welcome to the world of Ag Education. Ag Education brings a new form of education, and I am Viren Davra, and I am going to take the statistics subject of class 11 and 12. Okay, so let's start our subject. The first chapter of class 11 is the collection of data. Okay, so first of all, we will look at the overview of chapter. Okay, the first topic of this chapter is origin and the growth of statistic subject. Okay. And then the next topic is quantitative and qualitative data. The two types of data, quantitative and the qualitative data. And primary and the secondary data. The next topic is primary and the secondary data. The methods of collecting primary data. The next topic is how to collect the primary data. And then last topic is secondary data. In the secondary data, we will learn about the sources of secondary data and the precautions which we have to take while collecting the secondary data. Okay, so our first topic of first chapter, the collections of data, is origin of statistics. Okay, also we can say the history of statistics. Okay, in the origin of statistics, the field of statistics significant from the time of Maurya Empire. Okay, जो स्टेटिस्टिक है वो मौर्य एम्पायर से ही हम उसको देख सकते हैं। जब मौर्य एम्पायर चालू था, जब मौर्य साम्राज्य चल रहा था, तब उसमें भी स्टेटिस्टिक का बहुत सारा यूज किया जा रहा था। ठीक है, तो द स्टेटिस्टिक इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ मौर्य एम्पायर। And then in the book of Ain-i Akbari written by Abu Fazl during the time of Mughal Emperor Akbar. Okay, अकबर के समय में अबू फैजल नाम के एक राइटर ने ये एक बुक लिखी थी, जिसमें ऑल्सो मेंशन अ हाईली डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सर्विसेज ऑफ मुगल एम्पायर, जिसमें मुगल एम्पायर के बारे में लिखा गया था इस बुक में। और उस बुक में बहुत ही हाईली डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल सिस्टम है जो यूज किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द रेवेन्यू सर्विसेज के लिए। जो मुगल हमारे एम्पायर थे, ठीक है, मुगल साम्राज्य के जो राजा थे अकबर, वो जो एक सिस्टम यूज करते थे जो हाईली डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल सिस्टम थी, जिससे वो जो साम्राज्य है उसके सब हिसाब किताब किया करते थे, और जो भी उसके रेवेन्यू मतलब कि जो भी कर वो लेते थे लोगों के पास, उसका हिसाब किताब जो किया जाता था, उसके लिए एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल सिस्टम थी जो इस बुक में लिखी गई है। मतलब कि ये अकबर के समय से ही इसका यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक का। ओके, एंड देन बहुत सालों की बात की बात है कि जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक यूज्ड बाय गॉटफ्राइड एचेन इन 1749. In 1749, this person, whose name is Gottfried Achen, used the word statistic for the collections of data and the analysis for data. Okay. In 18th century, statistics was used for systematic collections of data. उसके बाद 18th सेंचुरी में स्टैटिस्टिक वर्ड यूज करने लगे लोग फॉर सिस्टमेटिक कलेक्शंस ऑफ डेटा। डेटा को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करने के लिए ये वर्ड यूज किया जाने लगा 18th सेंचुरी में, स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इन 1797। उसके बाद 1797 में द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड। ओके, स्टैटिस्टिक वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस किया गया इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में। ओके, इन 1797 में। एंड देन इन 17th and 18th century, okay, in between the 17th and the 18th century, the probability theory was found by the Laplace and the Gauss. Okay, this two person is known as the giant of statistics. The giant of statistics was Laplace and Gauss, who introduced the theory of probability in 17th or 18th century, in between the 17th and 18th century. Okay, this is the history of statistics. And then the first statistical body, okay, first statistical body, the Royal Statistical Society was found in 1834 in लंदन। उसके बाद फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी एस्टेब्लिश की गई, द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी इन लंदन में साल 1834 में। ओके,
1837 में लंदन में द फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी एस्टेब्लिश की गई थी एंड द कार्ल पियर्सन वाज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है उसके फाउंडर थे कार्ल पियर्सन, जिसने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोड्यूस किया उसने। ठीक है, तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ statistics. Statistics is significant from the time of Maurya Empire and then the Akbar Empire, and then this is the continuously growth of statistics. Okay, so our next topic is growth of statistics. Okay, so after the history we will learn about how statistics grows. Okay, the first, the Indian Statistical Institute, ISI, the Indian Statistical Institute, ISI, founded by Indian statistician P.C. Mahalanobis in 1931 at Calcutta. This ISI Institute, which is founded by Indian statistician P.C. Mahalanobis in 1931 at Calcutta. Okay. Also, he started the first post-graduation course in 1941 at Calcutta. Okay. Before that, there is no post-graduation course in statistics. Okay. He started the first post-graduation course. This is the growth, continuously growth of statistics. Okay. First, this institute was established, and then he started the first post-graduation course in statistics, and then Indian Agriculture Statistics Research Institute, IASRI, contribute a lot of development in the field of statistics. This institute was established, and then this institute contributes a lot of developments and the theories for the agriculture statistics. And then now we will go for the definition of statistics, okay, which is given by the Croxton and the Cowden. Okay. The first definition of statistics, which is given by the Croxton and the Cowden, according to them, the definition of statistics is the science which deals with the collection, analysis, and interpretation of numerical data. They said that the statistic is the science. Okay, why it is a science? Because in the science we have some rules, theories, and all. Same statistic also has some rules, some theories. Okay, so it is one type of science. Which type of science? Which deals with the collection, analysis, and interpretation. So statistics work in the three parts. First, collections of data. Second, analysis of data, and the third, interpretation of data. तो स्टैटिस्टिक है वो 3 पार्ट में वर्क करता है। पहले डेटा का कलेक्शन होता है, फिर उसका एनालिसिस होता है, एंड देन इंटरप्रिटेशन होता है। उसके ऊपर से कोई रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, कलेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कलेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद उसका एनालिसिस, उसको डिफरेंट टाइप में अलग अलग एनालिसिस अलग करना पड़ता है उसको। उसके बाद उसके ऊपर से हम कोई रिजल्ट पे आते हैं, कोई इंटरप्रिटेशन पे आते हैं कि डेटा के ऊपर से हमें क्या इंटरप्रिटेशन मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है। तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। कोई भी न्यूमेरिकल डेटा उसको कलेक्ट करना, एनालिसिस करना और उसके ऊपर से रिजल्ट निकालना, इंटरप्रिटेशन करना, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद क्या हुआ आगे? एंड देन इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक एंड द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशनल रिसर्च OR was used in military projects during the Second World War. Statistics कहाँ का यूज हुआ उसकी बात है। Statistics also used in the Second World War. Okay. Which field of statistics is used? The first, industrial statistics, and the branch of statistics, operational research OR, which is used in the military projects during the Second World War. Second World War में statistics यूज हुआ था काफी सारा, इसके रूल्स यूज हुए थे, उसकी थियरीज यूज हुई थी। ठीक है, ऑल्सो इट इज यूज इन द कैपिटल इनकम। गवर्नमेंट ऑल्सो यूज द स्टैटिस्टिक्स फॉर फाइंड द मैक्सिमम कैपिटल इनकम ऑफ country and all. Okay, the qualitative data and the quantitative data. What is qualitative data? Collection of observations on attribute.
Okay, which collection is on the basis of attribute is known as a qualitative data. Attribute means the quality, types or behavior of any object or anything. Okay, जो किसी की क्वालिटी के ऊपर या फिर उसके टाइप के ऊपर जो कलेक्शन में मिलता है उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा. ओके, एंड द क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन ऑन ऑब्जर्वेशन ऑन द न्यूमेरिकल वेरिएबल. ओके, जो कलेक्शंस है वो किसी न्यूमेरिकल बेसिस पे कलेक्ट किया गया हो जिसमें नंबर्स आते हो उसको क्या बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव. क्वांटिटी मतलब नंबर्स. ओके, quantity is related to number and quality is number related to the behavior, type or quality or attribute of a object. Okay, so which data is collected on the basis of attribute is known as qualitative data, and collection of observation which is collected on the basis of numerical variable is known as a quantitative data. In a qualitative data, no numerical वेरिएबल आर प्रेजेंट. ओके, कोई नंबर्स नहीं होते उसमें, टाइप्स होते हैं सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी और थिंग्स के. ओके, और न्यूमेरिकल जिस क्वांटिटी है मतलब न्यूमेरिकल ऑब्वियसली, ठीक है, नंबर्स तो उसमें आने वाले, जिसमें नंबर्स आते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटी, और जिसमें बिहेवियर आता है, एट्रीब्यूट आता है उसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव. फॉर एन एग्जांपल, अ जेंडर ऑफ वर्कर के जेंडर, तो वो मेल या फिर फीमेल, जिसमें कोई नंबर नहीं है, मेल है या फिर फीमेल, जो उसका एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसका टाइप है, तो उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव. एंड देयर एजुकेशन लेवल, और उसका एजुकेशन लेवल, मान कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 12 पास है, देन इट इज उसकी क्वालिटी है, उसका टाइप है और वो एट्रीब्यूट होता है, उसके लिए क्वालिटेटिव डेटा बोला जाएगा उसको. एंड देन क्वांटिटेटिव, एग्जाम्पल मंथली इनकम ऑफ वर्कर. मंथली इनकम मतलब 12,000 हो सकती है, किसी की 1 लाख हो सकती है, देन इट इज अ न्यूमेरिकल. ओके, देन न्यूमेरिकल डेटा इज नोन एज अ क्वांटिटेटिव डेटा. और देयर एज मींस देयर 30, 20 एनीथिंग which is a number, then it is known as a quantitative data. The simple where number are related, data which is related to number is known as a quantitative, and data which is related to attribute, it is known as a quantitative data. Okay, the next topic is data. What is the definition of data? Okay, the set of all the observations obtained by such inspections is called data. In a simple word we can say the information. Data is one type of information. Okay, the set of all the observations obtained by such inspections. Okay, set means ढेर है, ठीक है, एक ढेर उसको हम बोलते हैं, एक tag is a set. Okay, the set of an observation, एक ऑब्जर्वेशन का सेट जो हमने इंस्पेक्शंस करके निकाला हो उसको क्या बोलते हैं हम डेटा. ओके, इन अ सिंपल वर्ड डेटा इज अ इंफॉर्मेशन. ओके, वो इंफॉर्मेशन जो हम किसी को कुछ इंस्पेक्शन, कुछ सवाल करके उसमें से निकालते हैं या फिर उसको ऑब्जर्व करके हम उसमें से निकालते हैं, उस सबको क्या बोलते हैं हम डेटा बोलते हैं. ठीक है, किसी जगह पे जाते हैं या फिर किसी इंसान के पास जाते हैं, उसके साथ इंस्पेक्शन यानी कि पूछताछ करते हैं और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं या फिर किसी चीज को, उसमें से हम डेटा निकालते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको हम बोलते हैं data. The data is one type of collection of information. Okay, this is a simple data. Okay, before going ahead we have to understand the two words. The two words are population and a sample. Okay, that two words are very important for the study. Okay, the population. What is population? In statistics, a group of all the units under study is called population. Okay, a group of all the units. Okay, for the units which we are going to use for a statistical analysis or a interpretation, it is known as a population. Okay, in a simple word, population is in a 10th standard we use the word total outcome. That population is one type of total outcome. Okay, for an example, the total number of workers in a factory, that total number of worker is a population of that factory. Okay, मान लो कि हम किसी फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर जितने भी वर्कर्स है टोटल, उस सब वर्कर्स को हम क्या बोलेंगे, उसकी पॉपुलेशन बोलेंगे.
जो भी डेटा है उसमें से जो पूरा डेटा है जिसको हम कैलकुलेशन करने पे और एनालिसिस करने या फिर इंटरप्रिटेशन करने के लिए यूज करने वाले हैं, उस डेटा को क्या बोलते हैं? टोटल डेटा को पॉपुलेशन बोलते हैं। एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स इन इज नोन एज पॉपुलेशन ऑफ इज साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। ओके, और यूनिट, इसके अंदर जितने यूनिट होंगे पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, जैसे कि वर्कर की बात करें तो टोटल वर्कर कितने होंगे? वर्कर इज वन टाइप ऑफ यूनिट। ओके, तो फैक्ट्री के वर्कर की बात करें तो उसके अंदर मान लो कि 700 वर्कर्स है। ओके, देन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज 700। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। आगे हम हर बार जब भी टोटल आउटकम की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल आउटकम वर्ड नहीं आएगा, उसकी जगह पे क्या आएगा? टोटल पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन वर्ड आएगा। ठीक है, अब हर बार हम यूज करेंगे पॉपुलेशन इन अ प्लेस ऑफ और टोटल आउटकम। ओके, देन वर्ड सैंपल, अ सेट or a group of units selected from population on basis of some criterion is called sample। okay? जो ये पॉपुलेशन है उसमें से कोई ग्रुप या फिर छोटा सा सेट हम लेते हैं जिसके ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं या फिर जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर जिसका कुछ इंटरप्रिटेशन हमें चाहिए। ठीक है, उस ग्रुप को हम बोलेंगे सैंपल। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल हम निकालेंगे। मान लो कि अगर हम किसी फैक्ट्री के वर्कर्स की बात कर रहे हैं, उसमें से 700 वर्कर्स थे, उसके अंदर से हमें ऐसे चाहिए थे कि जिसकी एज 30 to 40 ईयर्स के बीच में हो। ठीक है, तो 30 to 40 ईयर्स के बीच वाले जितने भी वर्कर्स होंगे उसका एक जो ग्रुप बनेगा या फिर सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे सैंपल, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो दैट टू वर्ड सैंपल वर्ड इज अ सेम एज अ favorable outcome। okay, intentional we are using the word favorable outcome, it is same like a sample। okay, तो अब हम सैंपल वर्ड यूज करेंगे और पॉपुलेशन वर्ड हर बार यूज करेंगे। तो हमें ये माइंड में होना बहुत जरूरी है कि सैंपल पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। ओके, ओके, देन डेटा, डेटा इज डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज okay, the next topic is primary data and the secondary data। The first, what is primary data? The data originally collected by any authorized agency or investigator for the first time are called primary data। What is primary data? जो डेटा होता है वो किसी एजेंसी या फिर कोई इन्वेस्टिगेटर पर्सन होता है जिसके द्वारा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा को हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। कोई पर्सन जाता है वहां पे और उसको ऑब्जर्व करके कलेक्ट करता है या फिर कोई क्वेश्चनरीज करके या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन करके उसको कलेक्ट करता है। उस इंफॉर्मेशन का जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा, जो फर्स्ट टाइम लिया गया होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। जैसे कि घर पे जाके अभी इंक्वायरी करते हैं कि कितने पर्सन है घर में, वो सर्वे करते हैं वगैरह डेटा होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। एंड देन द सेकेंडरी डेटा, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी यूजेस the data already collected by any other agency or investigator, then it is become secondary data। okay? जो डेटा कोई एजेंसी या फिर इन्वेस्टिगेटर होता है वो किसी और एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया हुआ डेटा लेता है, जब ऑलरेडी जो कलेक्ट किया गया पहले से उसको जब लेते हैं हम तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। जैसे कि हम बोलते हैं रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। ओके, हु वन द इलेक्शन, तो वो जो डेटा होता है वो कोई और काउंट करता है, इलेक्शन के जो वोट्स होते हैं उसको कोई और काउंट करता है, वो इन्फॉर्मेशन बाहर पड़ती है, उसको इन्फॉर्मेशन को हम लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, जो किसी और ने कलेक्ट की है और उसके पास से हमने उसको रेडीमेड यूज किया है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी यूजेस द डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय एनी अदर एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर, देन इट बिकम सेकेंडरी डेटा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड द सेकेंडरी डेटा? The first difference, primary data obtained by first time and original। जो primary data है वो first time कलेक्ट किया जाता है और original data होता है। Secondary data, not original but it is the collected data reused by other। okay? Secondary data होता है वो original नहीं होता but it is collected for the reuse। okay? कोई collection किसी ने किया होता है उसको हम reuse करते हैं, वैसा data होता है वो secondary data। Collected from the unit अंडर इंक्वायरी, प्राइमरी डेटा है वो किसी यूनिट की इंक्वायरी करके उसमें से कलेक्ट किया जाता है, और सेकेंडरी डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटा। जो सेकेंडरी डेटा है वो किसी और ने जो कलेक्ट किया उसका जो प्राइमरी डेटा होता है उसमें से हम लेते हैं, इसको
सेकेंडरी, तो ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी डेटा, जो प्राइमरी डेटा में से ही ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, और ये डायरेक्ट इंक्वायरी से कलेक्ट होता है, यूजुअली इन रो फॉर्म। ओके, तो प्राइमरी डेटा इज यूजुअली इन द रो फॉर्म, प्राइमरी डेटा वो रो फॉर्म में होता है जिसका कोई अलग अलग डिवीजन नहीं किया गया था, जिसको क्लासिफाई नहीं किया गया होता है कि ये डेटा ये है, ये डेटा ये है, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ कलेक्शन किया हुआ रो मटेरियल जैसा रो डेटा होता है। क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड, तो सेकंड डेटा होता है ऑलरेडी क्योंकि किसी और ने कलेक्ट किया है, ओके, सम अदर पर्सन हु कलेक्टेड द डेटा, सो ही डेफिनेटली अरेंज इन द क्लासिफाइड फॉर्म और टेबुलेटेड फॉर्म। किसी और ने कलेक्ट किया है तो उसने कुछ क्लासिफाइड फॉर्म में रखा होगा या फिर टेबुलेटेड फॉर्म में उसको करके अरेंज करके डिवाइड करके रखा होगा, जो उसको हम रेडीमेडली यूज करेंगे। तो सेकेंडरी डेटा इज क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड, बट प्राइमरी डेटा इज यूजुअली इन द रो फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया तो रो फॉर्म में होता है। प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एंड मनी, टाइम एंड एनर्जी। ओके, जो प्राइमरी डेटा उसको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, क्योंकि घर घर जाके सर्वे करना हो किसी चीज का या फिर किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करना, उस जगह पे जाना वगैरह वगैरह, पर्सन उसके लिए लगते हैं बहुत सारे इंक्वायरी करने के लिए वगैरह, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मनी लगता है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कलेक्ट करना है तो हर जगह पे जाके उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, एंड देन वी कैन गो गेट अ डेटा, सो इट इज वेरी लॉन्ग टर्म डेटा। एंड एनर्जी हो गया, क्योंकि पर्सन उसके पीछे बहुत ज्यादा लगते हैं, हर जगह पे जाना वगैरह, तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगती है उसमें। कंपेरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। प्राइमरी डेटा के कंपेरेटिवली सेकेंडरी डेटा में लेस अमाउंट ऑफ मनी लगता है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है, या तो उसके पास से हमें कुछ पैसे देके खरीदना पड़ता है या फिर इट इज फ्री। ओके, सो इट इज लेस कंपेरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। ओके, तो हमें बहुत ही कम टाइम, एनर्जी और मनी लगता है उसको कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर दिया, उसको सोचते हमें रेडीमेड वी हैव टू बाय इट, इट इज कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव और not to get use much time or energy. And then the primary data almost reliable. Okay, primary data almost reliable होता है, क्यों reliable मतलब भरोसेमंद होता है, क्योंकि हमने जाके obviously उसको कलेक्ट किया, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया, ओरिजिनल है, तो obviously it is reliable. Okay, but may be not reliable or relevant from the point of view of users इंटरेस्ट एंड पर्पज। ओके, सेकेंड प्राइमरी डेटा के कंपेरेटिवली देखें तो जो सेकेंडरी डेटा होता है वो मे बी नॉट रिलायबल हो, ठीक है, या फिर नॉट रिलेवेंट हो, जो जिसको यूज करना है उसके पर्पज से या फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिलेबल नहीं होता, क्योंकि जिसने कलेक्ट किया है उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कुछ पर्पज से उसको कलेक्ट किया होगा, ठीक है, और जिसको यूज करना है दूसरी बार जिसको, तो उसके लिए मे भी ऐसा हो कि वो उसके लिए रिलेवेंट ना हो या फिर उसके लिए रिलायबल न हो, ठीक है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट कुछ और है, उसका पर्पस कुछ और है, तो ये मे भी उसको रिलायबल ना हो सकता है, पर ये है वो रिलायबल होता है क्योंकि उसने ही फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड द सेकेंडरी डेटा। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज methods of collecting data. Okay? We must have some method to collect the data on a easy way. Okay, we have three methods to collect the data. By using these three methods we can collect the data with very easy way. Okay, the first method is direct inquiry, the second method indirect inquiry, and the third method is method of questionnaire. Okay, one by one we will learn about this method and understand this method, how to use this method, advantages of this method and disadvantages of this method. Okay, so first of all, direct inquiry method. What is direct inquiry method? In this method, an investigator himself or an enumerator appointed by him visits the particular personally to the field and collect the necessary information. Okay, in this method what happens, investigator or himself or he hires some person who go to the that particular field and collect the information. Okay, for an example, if we want to collect an information about the farmer of a particular village, then investigator or some person who hired by the investigator go to the particular village. Okay, and then ask questions to the farmer. Okay,
some whatever data you want to get, he ask the question to the farmer and they collect some information. Okay, and the second example we have, if we want to collect the data about the status of student of a particular school. Okay, if you want to collect the data about the health status of students of a particular school of our city. Okay, then person go to the school and observe the student, or maybe they can ask the question to the school students and collect the information. Okay, this is the डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. ओके, वहां पे पर्सन खुद जाता है, कुछ क्वेश्चंस पूछता है या फिर कुछ चीजों को ऑब्जर्व करता है और उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ओके, उसके खुद पर्सन जिसको इन्वेस्टिगेटर वो खुद जा सकते हैं या फिर कुछ पर्सन को हायर करता है और वो वहां पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ओके, दिस इज द डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. ओके, वी हैव सम एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. ओके, सो फर्स्ट एडवांटेज, the data are accurate and reliable. Obviously person are going to that particular place and ask the question, so it must be a accurate and reliable. खुद वहां पे जाके क्वेश्चंस करते तो accurate और reliable होगा. Enumerators can solve any questions or doubt or any confusion by giving proper explanation. अब होता क्या है, मान लो कि हम फार्मर्स की बात करें तो फार्मर्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते, अगर एजुकेटेड नहीं है तो वहां पे कोई हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मान लो कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या आंसर देना है, किस बारे में आंसर देना है, किस फॉर्म में आंसर देना है. ठीक है, या फिर क्वेश्चन किस बारे में हो रहा है. तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि जो इमीडिएटर जो वहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं या फिर जो भी पर्सन वहाँ पे गया है वो उसके डाउट्स हो या फिर कोई उसके क्वेश्चन या फिर जो भी कंफ्यूजन है कि किस आंसर किस फॉर्म में देना है, तो उसको सॉल्व करता है, कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देके उसको सॉल्व करके हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. वरना ये हो सकता है कि वो कोई आंसर ही ना दे, इसलिए वहां पे पर्सन खुद वहां पे है तो उसको सॉल्व करके वहां से आंसर निकाल सकता है. एंड द समटाइम गेट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल. और क्या होता है कि कई बार हमें कुछ और इंफॉर्मेशन जिसके बारे में पूछना हमने डिसाइड नहीं किया, फिर पहले से हमने सोचा नहीं किया, उसके बारे में हम पूछेंगे, वो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे. वैसे सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है कि जो हमें यूजफुल हो सकती है. ओके, ऐसा कभी हो सकता है क्योंकि वहां पे खुद पर्सन जाता है कि वो ऑब्जर्व करके कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है उसको, या फिर कुछ बातों बातों में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल जाती है जो उसको यूजफुल हो सकती है. दिस इज द थर्ड एडवांटेज. एंड द फोर्थ इज मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड. ये जितने भी फील्ड इंक्वायरी का जो फील्ड है जितना ही कम होता है, लिमिटेड होता है, उतना ही वो ज्यादा अच्छी बेटर हो सकती है. क्योंकि अगर एरिया कम है तो उसमें से ज्यादा एनर्जी और टाइम नहीं लगता और हम उतना ही बेटर इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल सकते हैं. तो ये जितना भी एरिया फील्ड कम होता है उतना ही मच बेटर होती जाती है. ओके, द नेक्स्ट एडवांटेज इज कैन गेट इंफॉर्मेशन व्हेन रिस्पॉन्डर unwilling to give particular type of information by asking supplementary questions or giving assurance against the misuse of information. कई बार ऐसा होता है कि कोई रिस्पॉन्डर जिसके जो हमें आंसर देना है, मान लो कि फार्मर की बात करें तो फार्मर है वो रिस्पॉन्डर है कि जो आंसर देंगे हम इंफॉर्मेशन देंगे, तो जो रिस्पॉन्डर है वो कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देने के बाद देना नहीं चाहता, उसकी इच्छा नहीं, अनविलिंग टू गिव पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, वो इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता. तो क्या हो सकता है कि उस जो अगर इंसान वहां पे खुद गया है तो कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करके उसमें से वो इन्फॉर्मेशन निकाल जाए, कोई और क्वेश्चन करके उसमें से जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो निकाल सकता है, या फिर उसको अश्योरेंस दे सकता है, उसको गारंटी दे सकता है, उसको विश्वास दिला सकता है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है जो शायद पर्सनल हो सकती है वो उसका मिसयूज नहीं होगा. तो ऐसा अश्योरेंस दे के उसको भरोसा दिला के भी उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है. वरना वो इन्फॉर्मेशन अगर खुद वहां पे नहीं गया है, डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी हमें. So this is the advantage of direct inquiry method. Okay, then as an advantage we have some disadvantage also of a direct inquiry method. Okay, we have three disadvantages of direct inquiry method. The first disadvantage is require more time, more numbers of enumerators when field is wide. Okay, जब field बहुत बड़ा होता है तब उसके लिए हमें more time चाहिए, more number of इनोमेटर चाहिए जो वहां पे जाके इंक्वायरी कर सके, मोर पर्सन हायर करने पड़ते हैं. तो दिस इज मोर रिक्वायर मोर टाइम एंड मोर नंबर्स ऑफ इनोमेटर, एंड देन मोर एक्सपेंसिव ऑल्सो, क्योंकि मोर टाइम चाहिए उसके लिए, बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ इनोमेटर चाहिए, तो वी हैव टू पे सैलरीज टू द इनोमेटर्स, सो इट इज मोर एक्सपेंसिव ऑल्सो. ऑल्सो वी
need a transportation, so it is all about the expenses, so it is more expensive. And the third, information may be less reliable if the emulators are untrained. Okay, हमने बोला था कि वो रिलायबल होती है और एक्यूरेट होती है, पर इन केस ऑफ दिस कि इम्यूलेटर्स है वो अनट्रेंड हो, इम्यूलेटर पूरे तरह से ट्रेंड ना हो, ओके, जिसको बातों में से क्वेश्चंस निकालना नहीं आता, ठीक से क्वेश्चंस पूछना नहीं आता, देन इंफॉर्मेशन मे बी द लेस रिलायबल. ओके, इस केस में क्या हो सकता है कि इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं हो सकती, हमें जो पर्सन है वो पूरा ट्रेंड चाहिए तो ये रिलायबल रहेगा. तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड.